to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss fast MCQ related to the general service rules. And in this part today, I will discuss related to the service book. And also, you can collect information about the supplementary rules from 196 to 203. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. This part definitely it is interesting one, and one side you can get information about the supplementary rules 196 to 203, and also you can get information about the service book, and 12 MCQs with proper explanation I will discuss. Supplementary rules 196 to 203 I will discuss properly. So you see my WhatsApp number 8327782034. If you need PDF, contact with me in my WhatsApp number, and my Telegram channel link is t.me/BAPI2034. Also in video description also you can get my channel, and join my channel so that you can up to date yourself about my videos. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss general service rules MCQ 1. You see the question number 1. It is given a record of the services of a gazetted government servant will be kept by such audit officer and in such form as dash may prescribe. यहाँ पर जो है गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर है. हम जानते हैं कि जो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका जो सर्विस रिकॉर्ड्स एक्चुअली इट इज मेंटेन बाय ऑडिट ऑफिसर और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर. आप याद रखिए, ऑडिट ऑफिसर और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर. ठीक है, तो आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल गया. तो बेसिकली रिलेटेड टू गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस बुक मेंटेन बाय पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर एंड इन सच फॉर्म आज डैश में प्रेस्क्राइब. उसको 4 ऑप्शंस दिया है. CAG, इट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. ऑप्शन बी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, चीफ सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री. 4 ऑप्शंस आर देयर. So under whose prescription the service book of gazetted government servant maintained by audit officer or pay and accounts officer. So यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. इट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल and auditor general of government of India. Right? So option A is the correct answer. Right? So यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया. यहां पर देख लीजिए सप्लीमेंटरी रूल 196 record of gazetted government servants. A record of the services of a gazetted government servant will be kept by such audit officer. Audit officer के जगह आप ले जाइए पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर. अकाउंट्स ऑफिसर, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर सेम है. एंड इन सच फॉर्म as the controller and auditor general may prescribe. तो यहां पर हो गया. तो SR 196 इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. अंडर which rule of the supplementary rule record of the gazetted government servant service record of the gazetted government servant maintained by the pay and accounts officer under the prescription of the controller and auditor general. Right? तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन घुमा कर आ सकता है. इसको मैं एक्सप्लेन किया. चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सर्विस बुक इन सच फॉर्म as the controller and auditor general may prescribe must be maintained for every non-gazetted government servant के ऊपर है holding a substantive post on a permanent establishment or officiating in a post or holding a temporary post
विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। तो यहां पर जो है नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर है। तो हम जानते हैं कि जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है, द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली मेंटेन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। नॉन गेजेटेड सर्वेंट केस में सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन बाय द हेड ऑफ ऑफिस, बट गेजेटेड सर्वेंट जो है द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट मेंटेन बाय द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, तो यहां पर जो दिया है, फॉर एवरी नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए सब्सटेंटिव पोस्ट ऑन ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिशिएटिंग इन ए पोस्ट और होल्डिंग ए टेम्पररी पोस्ट विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, टू स्टेटमेंट्स गिवन एंड ये पूछा है करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट 1 दिया है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स द पर्टिकुलर्स ऑफ व्हिच सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन ए हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज और ए सर्विस रजिस्टर मेंटेन बाय ऑन पीएओ by a PAO, it is A. Government servants officiating post or holding temporary post which are recruited for purely temporary or officiating vacancies not likely to last for more than 1 year and are not eligible for permanent appointment. तो आप याद रखिए कि जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट केस में बेसिकली उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है इट इज मेंटेन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, मगर एक्सेप्शन इसको छोड़कर क्या इसमें इंक्लूड नहीं है। फर्स्ट वन, ये दोनों एक्चुअली करेक्ट है। ये एक्सेप्शन है नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, क्योंकि इन केस ऑफ गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली सर्विस बुक रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, पीओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, तो ये इसमें नहीं आएगा। ओके, सेकेंड वन है जिसका टेम्पोररी पोस्ट है लेस देन 1 ईयर, जो ऐसा कुछ वैकेंट पोस्ट है मगर उसका टेन्योर है लेस देन 1 ईयर, और कोई टेम्पररी पोस्ट है उसका टेन्योर है लेस देन 1 ईयर, इस केस में उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2 करेक्ट वन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली वो नॉन गेजेटेड सर्वेंट के ऊपर नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, रिकॉर्ड सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन बाय द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। सेकंड केस क्या है, चाहे जो टेम्पररी पोस्ट है उसका जो टेन्योर है लेस देन 1 ईयर है, वो वही दिया है कि ऐसा कोई वैकेंट पोस्ट है जिनका टेन्योर लेस देन 1 ईयर है, तो वो एक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। तो ये दोनों एक्सेप्शंस आ जाता है बेसिकली रिलेटेड टू द नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट केस में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीट सी बोथ आर करेक्ट वन। तो बोथ आर नॉट इंक्लूडेड इन केस ऑफ द इट मीन्स सर्विस रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस फॉर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, बोथ एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे, सप्लीमेंटरी रूल 197, ये नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस बुक्स के ऊपर है। जो 196 था सप्लीमेंटरी रूल वो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर था। यहां पर यही दिया है कि सर्विस बुक इन सच फॉर्म एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इट मीन्स CAG, में प्रिस्क्राइब must be maintained for every non-gazetted government servants holding a substantive post on a permanent establishment or officiating in a post or holding a temporary post with the following exceptions। अभी दोनों एक्सेप्शंस को मैं डिस्कस किया। ये जो होता है फर्स्ट वन है, इट इज रिलेटेड टू द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, द सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ द गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स मेंटेन बाय द ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर की जगह आप क्या कर सकते हो, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर व अकाउंट्स ऑफिसर। और सेकेंड वन है ऐसा जो टेम्पररी पोस्ट है हुज टेन्योर इज लेस देन 1 ईयर, ऑल्सो ये भी उनके लिए ये भी इसमें नहीं आएगा। जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर में बताया अभी, उनका जो सर्विस रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करता है हेड ऑफ द ऑफिस, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, ये SR 197 में डिस्कस किया गया है। दोनों ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, इसी रिलेटेड में आ रहा है। तो ये दोनों नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ये रिलेटेड नहीं है। ए और बी जो दोनों ऑप्शन से ये रिलेट नहीं करता है, रिलेटेड टू नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन। करेक्ट वन देखेंगे, सर्विस बुक विल बी ओपन फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये करेक्ट है।
फ्रॉम द डेट सपोज आपका टेम्पररी सपोज आपका परमानेंट अपॉइंटमेंट होता है जिस डेट में, चाहे वो टेम्पररी अपॉइंटमेंट होता है मगर वो ऑटोमेटिकली उस जो जिसका टेन्योर मोर देन 1 ईयर होगा और बाद में वो परमानेंट होगा। आपको याद रखना है बेसिकली जिस डेट में आप न्यूली गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे, चाहे वो परमानेंट पोस्ट हो कि चाहे वो टेम्पररी पोस्ट हो, मगर उसका टेम्पररी पोस्ट होगा तो टेन्योर मोर देन 1 ईयर होगा, नहीं कि? तो सर्विस बुक कब से ओपन होगा, ये क्वेश्चन आता है फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। जिस डेट में आपका अपॉइंटमेंट होगा उसी डेट से आपका सर्विस बुक को मेंटेन किया जाएगा। ये करेक्ट है। द सर्विस बुक ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन। यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हो, ठीक है, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हो तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट को आप जा रहे हो वैसा ही आपका सर्विस बुक को ट्रांसफर कर दिया जाएगा थ्रू टेक्निकल रेजिग्नेशन। व्हेन ए पर्सन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट टू ए न्यू डिपार्टमेंट, इन दिस केस सर्विस बुक कैन ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट डिपार्टमेंट टू न्यू डिपार्टमेंट, मगर टेक्निकल रेजिग्नेशन होना चाहिए। ये भी करेक्ट है। हेड ऑफ ऑफिस may also authorize a junior officer to attest service book entries on his behalf। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। जो हेड ऑफ ऑफिस बेसिकली हम जानते हैं इन केस ऑफ नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस टू मेंटेन द सर्विस बुक रिकॉर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो हेड ऑफ द ऑफिस वो भी जूनियर ऑफिसर को ऑथराइजेशन दे सकता है। हेड ऑफ द ऑफिस जूनियर ऑफिसर को ऑथराइजेशन दे सकता है कि वो सर्विस बुक एंट्रीज को वो अटेस्ट कर सकता है ऑन हिज बिहाफ। ये करेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक जूनियर ऑफिसर को वो ऑथराइज कर सकता है कि वो सर्विस बुक को अटेस्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस। ये भी करेक्ट है। एंट्रीज इन द सर्विस बुक ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, जब हेड ऑफ ऑफिस का बात आएगा, जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स का सर्विस बुक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, मगर जब हेड ऑफ ऑफिस का बात आएगा सर्विस बुक ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, देन एंट्रीज मस्ट बी मेंटेन बाय द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। ये भी करेक्ट है। चारों ऑप्शन करेक्ट है। ये चारों ऑप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेड ऑफ द ऑफिस एक जूनियर ऑफिसर को ऑथराइजेशन दे सकता है कि वो सर्विस बुक में एंट्रीज करेगा और अटेस्ट करेगा। और यदि खुद का हेड ऑफ द ऑफिस का बात आ जाता है, उसका सर्विस बुक को कौन मेंटेन करेगा ना, उससे जो हायर ऑफिसर है वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हायर ऑफिसर जो नेक्स्ट हायर ऑफिसर है हेड ऑफ द ऑफिस का, वो मेंटेन करेगा। और टेक्निकल रेजिग्नेशन में सर्विस बुक का ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट। और सर्विस बुक कब से मेंटेन होता है ना, जिस डेट में फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा उसी डेट से आपका सर्विस बुक मेंटेन होगा। तो आपको आंसर मिल गया। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट वन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सर्विस बुक मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द डेस्क इन व्हिच ही इज सर्विंग एंड ट्रांसफर्ड विथ हिम फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। तो सर्विस बुक का जो किसका कस्टडी में है, इट इज हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द सर्विस बुक एंड ऑल्सो इट मीन्स कस्टोडियन ऑफ द सर्विस बुक। एंड जब ट्रांसफर होता है एक ऑफिस से और एक ऑफिस को ट्रांसफर किया जाएगा, मगर थ्रू टेक्निकल रेजिग्नेशन, नहीं कि डीटीओ हेड ऑफ द ऑफिस, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सपोज आप एक ब्रांच में काम कर रहे हो, अभी आपका ट्रांसफर हो गया, तो जो आपका पेरेंट ऑफिस अभी है उससे आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपका सर्विस बुक को। तो उसको ट्रांसफर कौन करेगा और उसका किसका कस्टडी में है सर्विस बुक, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है, जो डीटीओ है वो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, तो यहां पर जो ऑप्शन है हेड ऑफ द ऑफिस आंसर। तो बेसिकली हेड ऑफ द ऑफिस इज द कस्टोडियन ऑफ द सर्विस बुक and also he or she can transfer the service book from one office to another office at the time of transfer, or when the person through technical resignation, when the person transfer from the parent department to new department, right?
तो ये आप देखिए जो कस्टोडियन के ऊपर SR 100 सप्लीमेंट्री रूल 198 के ऊपर है, अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टोडियन के ऊपर है। चलो देखते हैं, आगे में डिस्कस करेंगे कस्टोडियन के ऊपर। ये क्वेश्चन आ गया, सर्विस बुक मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी, सर्विस बुक मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस in which he is serving and transferred with him from office to office. It is mentioned in which supplementary rule? अभी मैं बताया supplementary rule 198, supplementary rule 198 में clearly mention है, custody के ऊपर mention है, it is the responsibility of the head of the office, okay, it is under the custody of head of the office, okay, to maintain the service book records of the employees, okay, and also transfer it at the time of transfer or through technical designation also transfer the service book. ये सप्लीमेंट्री रूल 198 के ऊपर है। तो अभी देखिए SR 198 में वही है, मेंटेन ऑफ ए सर्विस बुक इन ऑल केसेस इन विच ए सर्विस बुक इज नेसेसरी अंडर रूल 197, सच ए बुक शैल बी मेंटेन फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये दिया है, shall be maintained for a government servant from the date of his first appointment to government service. It must be kept in the custody of the head of the office in which he is serving and transferred with him from office to office. ये अभी मैं बताया, तो जिस डेट में एक्चुअली एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है गवर्नमेंट जॉब, उसी डेट से उसका सर्विस बुक का रिकॉर्ड मेंटेन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और सेकेंड वन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेड ऑफ द ऑफिस का है, क्योंकि यहाँ पर नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट होगा तो उनका जो सर्विस बुक रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करेगा? अकाउंट्स ऑफिसर, ओके। तो गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो उनका जो सर्विस बुक का रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करेगा पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। वो मैं बताया था SR 196 सप्लीमेंट्री रूल 196। जब नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट का बात आएगा, सर्विस रिकॉर्ड्स ये 197 है, SR 190 सप्लीमेंट्री रूल 197, ये नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट, द सर्विस बुक रिकॉर्ड्स ऑफ द नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट मेंटेन बाय द हेड ऑफ द ऑफिस, है कि वही है, यहाँ पर वही क्वेश्चन है। इट मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच ही इज सर्विंग एंड ट्रांसफर्ड विथ हिम फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस। तो ये मेंटेन ऑफ ए सर्विस बुक, ये भी आएगा, ये कौन सा सर्विस रूल में है? कस्टडी का। चला, कस्टडी का बात, कस्टडी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और फ्रॉम विच डेट एक्चुअली द सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉय मस्ट बी मेंटेन? तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, वो भी सप्लीमेंट्री रूल 198 में मेंशन है, आप उसको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, डैश मस्ट बी रिकॉर्डेड इन हिज सर्विस बुक and each entry must be attested by the head of his office. Every step in a government servant's official life, government servant's official life, government servant's official career, every step in a government servant's important official life, इसमें क्या है? dash must be recorded in his service book and each entry must be attested by the head of his office. तो यहां पर जो ऑप्शन ए करेक्ट है, ए करेक्ट है। एवरी स्टेप इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ, एवरी स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एवरी स्टेप इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन हिज सर्विस बुक। जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसका एवरी स्टेप, जो गवर्नमेंट लाइफ में उसका एवरी स्टेप को मेंटेन किया जाएगा सर्विस बुक में, चाहे इंक्रीमेंट हो, चाहे पे फिक्सेशन हो, चाहे आपका सपोज आपका ट्रांसफर होता है वो रिकॉर्ड, ठीक है, कि आपका जो न्यू बेसिक पे है, कि आपका सस्पेंशन हुआ और रीजन क्या था, ठीक है, कि सपोज आप अनऑथराइज लीव ले लिए और उसको कंडोन नहीं किया गया तो अनऑथराइज लीव हो गया, जो सर्विस इंटरप्शन हो जाता है, ठीक है, और आप LTC लिया, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो भी मेंशन होगा, और लीव रिकॉर्ड्स वो भी मेंशन होगा। तो पूरा टिटबिट रिकॉर्ड, एवरी स्टेप in a government servant's official life must be recorded in service book and each entry must be attested by the head of his office. तो मैं बताया, चाहे लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव रिकॉर्ड्स, राइट, और उसमें आपका फैमिली रिकॉर्ड, आपका होम टाउन, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन, आपका कंडक्ट, ये पूरा सब मेंशन होगा।
उसके साथ आपका पे फिक्सेशन हुआ, कि आपका इंक्रीमेंट लगा, कि आपका बेसिक पे, ठीक है, कि आपको सपोज सस्पेंड कर दिया गया, रीजन क्या था, आपका सर्विस इंटरप्ट हुआ, आप अनऑथराइज लीव ले लिए, उसको कंडोन नहीं किया गया, इंटरप्शन हो गया, कितना पीरियड के लिए, सस्पेंशन हुआ कितना पीरियड, ये पूरा सभी मेंशन होता है, ठीक है, कि आपको मेमो मिला, कुछ वार्निंग मिला, वो सभी मेंशन होता है आपका सर्विस रिकॉर्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखिए, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी स्टेप इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ, ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। SR 199 में है ये, एंट्री ऑफ एवरी स्टेप, देखिए एंट्री ऑफ एवरी स्टेप ऑफ ऑफिशियल लाइफ इन सर्विस बुक, ये SR 199, इसको याद रखना है। सप्लीमेंटरी रूल 199 में क्लियरली मेंशन है, एवरी स्टेप ऑफ द ऑफिशियल लाइफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक, तो वही दिया है, एवरी स्टेप इन ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन ए सर्विस बुक and each entry must be attested by the head of his office, or if he himself is the head of the office, by his immediate superior। यदि जो हेड ऑफ द ऑफिस खुद है, उसका सर्विस बुक रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, उसका जो नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर है, ठीक है। द हेड ऑफ द ऑफिस मस्ट सी दैट ऑल एंट्रीज आर डेली मेड एंड अटेस्टेड एंड दैट द बुक कंटेन्स नो एराजर, ये इसको याद रखिए, दैट द बुक कंटेन्स नो एराजर और ओवर राइटिंग, कोई उसमें एराज नहीं होगा, एराजर नहीं लगेगा, कि ओवर राइटिंग नहीं होगा। ऑल करेक्शंस बीइंग नीटली मेड एंड प्रॉपरली अटेस्टेड, यदि कुछ करेक्शंस होता है वो नीटली मेड होगा और अटेस्टेड होगा, ठीक है। ये SR 199 में क्लियरली मेंशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कहां पर एवरी स्टेप ऑफ द ऑफिशियल लाइफ इन सर्विस बुक इज मेंटेन्ड, इट इज अंडर व्हिच सप्लीमेंटरी रूल, इट इज सप्लीमेंटरी रूल 199। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एवरी पीरियड ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, एवरी पीरियड ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एंड एवरी अदर इंटरप्शन ऑफ सर्विस मस्ट बी नोटेड with full details of its duration is an entry made across the page of the service book and must be attested by the attesting officer, it is mentioned under which supplementary rule। यहाँ पर क्या है, यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, कितना पीरियड के लिए उसको सस्पेंड किया गया, क्या रीजन था, और यदि आपका इंटरप्शन ऑफ सर्विस क्या है, सपोज आप अनऑथराइज लीव ले लिया, आप लीव परमिशन ले लिया, नहीं लिया, आप अनऑथराइज लीव ले लिया और उसको कंडोन नहीं किया, माफ नहीं किया गया, तो इस केस में वो सर्विस इंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्शन ऑफ सर्विस हो जाएगा, तो ये भी मेंटेन रिकॉर्ड होगा, फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली सर्विस इज इंटरप्टेड, तो और कितना पीरियड के लिए वो सर्विस आपका इंटरप्ट हुआ, तो ये जो डिटेल्स मेंशन है सर्विस बुक में तो मेंशन होगा, ओके, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ड्यूरेशन ऑफ सस्पेंशन, रीजन्स और इंटरप्शन ऑफ सर्विस, रीजन्स एंड ड्यूरेशन, ये सब मेंशन होता है। तो ये सप्लीमेंटरी रूल, किस सप्लीमेंटरी रूल में ये एक्चुअली मेंशन किया गया है, कि जब आपका सर्विस बुक में सपोज मेंशन होता है कि सस्पेंशन का रीजन और ड्यूरेशन, की इंटरप्शन ऑफ सर्विस क्या ड्यूरेशन और रीजन, ये सप्लीमेंटरी रूल 200 आप याद रखिए, ये क्लियरली मेंशन है, सप्लीमेंटरी रूल 200 में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। आंसर इज बिट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दिया है देखिए, SR 200, एंट्री ऑफ सस्पेंशन एंड एवरी अदर इंटरप्शन इन सर्विस बुक, एवरी पीरियड ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट and every other interruption of service must be noted with full details of its duration in an entry made across the page of the service book, and also ये mention होगा और attested भी होगा, and must be attested by the attesting officer, attested भी होगा, it is the duty of the attesting officer to see that such entries are promptly made, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 2 स्टेटमेंट्स गिवन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर मस्ट नॉट अनलेस द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सो डायरेक्ट्स बी एंटर्ड इन ए सर्विस बुक, ये एक्चुअली करेक्ट है, यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, ये करेक्ट है। क्या है, सपोज कोई पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर, पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर, यदि आपका तो सर्विस बुक रिकॉर्ड में पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर, वो मेनली डिपेंड करता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यदि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन देते हैं
if HOD, head of the department, has given permission to maintain the record related to the personal certificates of character, then होगा वो। मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सपोज ही हैज नॉट अलाउड, वो अलाउ नहीं किया है, तो वो पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर वो मेंशन सर्विस बुक रिकॉर्ड में मेंशन नहीं होगा। तो वही दिया है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का डायरेक्शन चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डायरेक्शन देते हैं तो पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर मेंशन होगा, वो नहीं देते हैं तो नहीं होगा। तो वही है, पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर मस्ट नॉट समझिए अनलेस द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सो डायरेक्ट्स बी एंटर्ड इन ए सर्विस बुक। ये करेक्ट है। सपोज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दिया, डायरेक्शन नहीं दिया, तो पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर जो कंसर्न एम्प्लॉय का पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर को मेंशन नहीं किया जाएगा। यदि वो डायरेक्शन देते हैं हाँ इसको मेंशन कीजिए, तो पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर जो कंसर्न एम्प्लॉय का मेंशन होगा। ये करेक्ट है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड टू ए लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट, सपोज आपका पोस्ट आप पहले, ये कब होता है आप जानते हो, सपोज आप ज्वाइन किया था, इसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकेंड वन आप टीजीटी में ज्वाइन किए थे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, फिर आपका प्रमोशन होकर पीजीटी हो गया, प्रमोशन होकर, तो इस केस में आप लोअर पोस्ट को आपको पनिशमेंट में, यदि आपको मेजर पेनल्टी लगता है, मेजर पेनल्टी केस में, ठीक है, आपको ये भी लग सकता है, जैसे आपका जो ओरिजिनल पोस्ट टीजीटी था, प्रमोशन होकर आप पीजीटी बन गए, ठीक है, और यदि मेजर पेनल्टी लगता है तो आपका पोस्ट को रिड्यूस किया जाएगा पीजीटी से टीजीटी को। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीजीटी, मगर ये इस केस में नहीं होगा। जैसे आप पीजीटी में डायरेक्टली ज्वाइन किया है तो टीजीटी को आपको, आपका जो सब्सटेंटिव पोस्ट है पीजीटी, उससे टीजीटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इसमें नहीं किया जाएगा। मगर इस केस में क्या है, मैं बताया कि आप टीजीटी थे, पीजीटी को आपका प्रमोशन हो गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, यदि मेजर पेनल्टी लगता है और मेजर पेनल्टी में ये डिसाइड हुआ कि आपका पोस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, तो पीजीटी से आप टीजीटी जा सकते हो। तो ये है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड टू ए लोअर सब्सटेंटिव पोस्ट, द रीजन ऑफ द रिडक्शन मस्ट बी ब्रीफली शोन। ये रीजन भी मेंशन किया जाएगा। सपोज आप कोई लोअर पोस्ट को, जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दिया, लोअर पोस्ट को आपको जो पनिशमेंट है, इससे आपको आपका जो पोस्ट है वो रिड्यूस कर दिया गया, इस केस में रीजन मेंशन होगा। तो दोनों करेक्ट है, मगर यहां पर इनकरेक्ट पूछा है। ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है मींस नाइदर वन नॉर टू आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन अभी आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों करेक्ट है, एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो SR 201 यहां पर दिया है, एंट्री ऑफ रिडक्शन ऑन लोअर पोस्ट इन सर्विस बुक। यदि कंसर्न एम्प्लॉय का मेजर पेनल्टी जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965, आप ये देख लीजिए, CCA रूल्स 1965, ओके, आप रूल देख लीजिए, आप रूल 14 देख लीजिए, ये मेजर पेनल्टी के ऊपर है। और मेजर पेनल्टी में क्या है, लोअर पोस्ट को इट मींस रिडक्शन टू लोअर पोस्ट, ओके। तो बेसिकली हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट, ओके, मिल जाता है बेसिकली पनिशमेंट में, मेजर पेनल्टी केस में। तो वही है, वो इस केस में जो एंट्री होगा वो रीजन मेंशन होगा कि क्या रीजन था, किस लिए आपको पनिशमेंट मिला, वो रीजन मेंशन होगा, वही दिया है। यहां पर देखिए, पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर मस्ट नॉट ऑनलेस द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सो डायरेक्ट्स बी एंटर्ड इन ए सर्विस बुक। डायरेक्ट पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर, कोई कंसर्न एम्प्लॉय का जब कोई पर्सनल सर्टिफिकेट्स ऑफ कैरेक्टर को मेंशन किया जाएगा, वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पूछा जाएगा। फर्स्ट वन नीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इफ he or she directs, then personal certificates of character must mention in the service book record, otherwise not. नेक्स्ट वन, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सब्सटेंटिव पोस्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसका क्लियरली रीजन मेंशन होगा, ओके। ये SR 201 में आप याद रखिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, एंट्री ऑफ रिडक्शन ऑन लोअर पोस्ट इन सर्विस बुक। क्लियर? ये जो सप्लीमेंट्री रूल 201 में दिया गया है, एंट्री ऑफ रिडक्शन ऑन लोअर पोस्ट इन सर्विस बुक।
चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. In January every year, the government servant shall hand over his copy to his office for updation, which should be returned within dash days of its receipt. दो कॉपी है, जो ओरिजिनल कॉपी तो हेड ऑफ ऑफिस के पास रहेगा, एक डुप्लीकेट कॉपी दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को. मगर एवरी ईयर का जो जनवरी मंथ में गवर्नमेंट सर्वेंट उसका डुप्लीकेट कॉपी को हेड ऑफ द ऑफिस को हैंड ओवर करेगा अपडेशन के लिए. समझ में आ गया? इन मंथ ऑफ जनवरी एवरी ईयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैंड ओवर हिज और हर डुप्लीकेट कॉपी टू हेड ऑफ द ऑफिस फॉर अपडेशन. और कितना दिन के अंदर, विदिन हाउ मेनी डेज अगेन हेड ऑफ ऑफिस रिटर्न बैक द डुप्लीकेट कॉपी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट. वही क्वेश्चन पूछा है यहां पर. ऑप्शन 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज. आपको याद रखना है 30 डेज. आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. एवरी ईयर जनवरी में आपके पास जो डुप्लीकेट कॉपी है आप हैंड ओवर कर दोगे हेड ऑफ ऑफिस को. आप जिस डेट में आप उनको हैंड ओवर किया उसी से आप 30 डेज काउंट कर लो. उसी 30 डेज के अंदर जिस डेट में आप हैंड ओवर किया और हेड ऑफ द ऑफिस उसको रिसीव किया, ठीक है, उसी से आप 30 डेज के अंदर अगेन हेड ऑफ द ऑफिस आपका डुप्लीकेट कॉपी को अपडेट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 30 डेज. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी हेड ऑफ द ऑफिस टू इनिशिएट एक्शन to show the service book to the government servant under his administrative control every year and to obtain their signature therein, token of their having inspected the service books. A certificate to the effect that he has done so in respect to the preceding financial year should be submitted by him to his next superior officer by the end of every dash. तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर में जो भी आपका सर्विस बुक रिकॉर्ड्स में मेंटेन हुआ तो आप तो देखोगे. तो जो प्रेसिडिंग ईयर में जो भी आपका सर्विस बुक में मेंटेन होगा तो हेड ऑफ द ऑफिस आपको सर्विस बुक आपको हैंड ओवर करेगा चेक करने के लिए और आपसे साइन भी लेगा. आप चेक करोगे और साइन भी करोगे. ठीक है, तो आप चेक करके सिग्नेचर करने के बाद एक सर्टिफिकेट एक्चुअली इशू होता है. ये सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट that has been done so in respect of the preceding financial year. तो वहां पर एक सर्टिफिकेट इशू होता है. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल 1 टू मार्च 31 नहीं कि, तो उसके अंदर जो भी आपका सर्विस बुक में मेंशन हुआ है तो वो आपका राइट है. आप उसको चेक करोगे और ओरिजिनल कॉपी में सिग्नेचर करोगे. ये करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू होगा और वो सर्टिफिकेट सुपीरियर ऑफिसर को हैंड ओवर किया जाएगा कि जो कंसर्न एम्प्लॉय है वो देख चुका है उसका सर्विस रिकॉर्ड को और भी सिग्नेचर भी किया है. ठीक है, तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है. सो वो कौन सा मंथ है यहाँ पर? जून, अप्रैल, जुलाई, सितंबर. और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर मीन्स आपका अप्रैल 1 टू मार्च 31. ठीक है, उसमें जो भी सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन होगा आप उसको चेक करोगे और जो आपका ओरिजिनल कॉपी तो हेड ऑफ ऑफिस के पास है, आपके पास डुप्लीकेट कॉपी है. डुप्लीकेट कॉपी में भी वो अप टू डेट हुआ है. तो जो ओरिजिनल कॉपी है आप सिग्नेचर करोगे और पूरा चेक करोगे कि पूरा फाइनेंशियल ईयर में ये मेरा सर्विस रिकॉर्ड्स में मेंशन हुआ. क्या आपका बेसिक पे है, ठीक है, आपको इंक्रीमेंट्स ठीक से मिला है कि नहीं, कि कुछ पे फिक्सेशन हुआ, कि आप एलटीसी लिया है. तो जो भी आप चेक करोगे और उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ओके हेड ऑफ द ऑफिस, और सर्टिफिकेट इशू करेंगे सुपीरियर ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा और इससे पता चल जाएगा कि कंसर्न एम्प्लॉइज वो चेक कर चुके हैं. ओके, तो एक्चुअली बाय द एंड ऑफ एवरी सितंबर आपको आंसर सितंबर. ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट ही हैज डन सो इन रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड बी सबमिटेड बाय हिम टू हिज नेक्स्ट सुपीरियर ऑफिसर बाय द एंड ऑफ एवरी सितंबर. तो जो सर्टिफिकेट एक्चुअली इशू होगा, जो सर्टिफिकेट एक्चुअली हेड ऑफ द ऑफिस इशू करेगा और बेसिकली सुपीरियर ऑफिसर को वो सर्टिफिकेट को सबमिट करेगा, वो कंप्लीट होना चाहिए बाय द एंड ऑफ एवरी सितंबर. और जब सुपीरियर ऑफिसर वो सर्टिफिकेट को रिसीव करेगा और उससे वो बेसिकली सेटिस्फाई हो जाएगा कि सभी एम्प्लॉइज उनका सर्विस बुक
रिकॉर्ड को, फाइनेंशियल ईयर जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर था उसमें उनका जो सर्विस रिकॉर्ड था उसको वो चेक कर चुके हैं और उनका उसको सिग्नेचर भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। SR 202 में वही चीज दिया है कि शोइंग ऑफ सर्विस बुक टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी ईयर। तो जो SR 202 में वही मेंशन है कि एवरी ईयर द कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैविंग राइट टू चेक देयर सर्विस बुक एंड पुट देयर सिग्नेचर। और एक जो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अभी मैं बताया, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 टू मार्च 31 जो भी रिकॉर्ड मेंशन हुआ है आपको चेक करना है और साइन करना है। और इस केस में हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा और सबमिट करेगा नेक्स्ट हायर ऑफिसर को। और ये सब कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ मंथ सितंबर। ठीक है, तो यही चीज दिया है SR 202 में। और जो हेडिंग है उसको याद रखना है, शोइंग ऑफ सर्विस बुक टू गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी ईयर। ओके, एवरी ईयर गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस बुक को दिखाना है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री रूल 202 में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस द हेड ऑफ हिज ऑफिस और डिपार्टमेंट मस्ट सेंड हिज सर्विस बुक टू द डैश हु विल रिटर्न इट आफ्टर नोटिंग इन इट। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है फॉरेन सर्विस में, इस केस में हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा ना, उसका जो सर्विस बुक को किसको हैंड ओवर करेगा एंड हु विल रिटर्न इट आफ्टर नोटिंग इन इट, तो वो PAO है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। तो याद रखिए, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है फॉरेन सर्विस में तो उसका जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो उसका सर्विस बुक को पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा और वो उसमें मेंशन करेगा, नोटिंग करेगा कि इसी डेट से वो फॉरेन सर्विस में ज्वाइन किया, तो डिटेल्स वो मेंशन करेगा और वो रिटर्न कर देगा। तो वो एक्चुअली मेंशन होता है पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां पर हेड ऑफ द ऑफिस इस तरीका का सर्विस रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेगा, हेड ऑफ द ऑफिस हैंड ओवर कर देगा पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को सर्विस बुक ऑफ द एम्प्लॉई हु ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस, और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर उसको नोटिंग करने के बाद वो फिर रिटर्न कर देगा। और ये जो है ये SR सप्लीमेंट्री रूल 203 में दिया है, राइट। यहां पर देख लीजिए, SR 203 ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस बुक। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस द हेड ऑफ हिज ऑफिस और डिपार्टमेंट मस्ट सेंड हिज सर्विस बुक टू द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर हु विल रिटर्न इट आफ्टर नोटिंग इन इट अंडर हिज सिग्नेचर द ऑर्डर सैंक्शनिंग द ट्रांसफर, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर इन रिगार्ड टू लीव एडमिसिबल ड्यूरिंग फॉरेन सर्विस, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करके वो फिर दे देगा। ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स रीट्रांसफर, यदि फिर गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्न आ जाता है उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, वहां पर अगेन उसका सर्विस बुक को पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को दिया जाएगा और वो पूरा मेंशन करेगा कि रिकवरी ऑफ लीव सैलरी और एनी पेंशन कंट्रीब्यूशंस वो सब एंट्री करेगा। नो एंट्री रिलेटिंग टू द पीरियड स्पेंट ऑन फॉरेन सर्विस शुड बी अटेस्टेड बाय एनी अथॉरिटी अदर देन PAO। तो ओनली पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर का राइट है वो, तो दोनों टाइम में जब उसका ट्रांसफर होगा हेड ऑफ द ऑफिस पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को कंसर्न एम्प्लॉई जिसका ट्रांसफर हुआ फॉरेन सर्विस में उसका सर्विस बुक को हैंड ओवर करेगा और वो नोटिंग करेगा कि किस डेट से एक्चुअली वो ट्रांसफर ऑर्डर इफेक्ट हुआ और बेसिकली उसका जो फॉरेन सर्विस का ड्यूरेशन है ओके वो डिटेल्स मेंशन होगा और वो PAO फिर रिटर्न कर देगा हेड ऑफ द ऑफिस को। और जो उसका फिर अगेन वो व्हेन ही कम बैक, व्हेन द कंसर्न एम्प्लॉय ट्रांसफर टू फॉरेन सर्विस, व्हेन ही और सी रिटर्न बैक टू पेरेंट डिपार्टमेंट, उस टाइम में भी अगेन हेड ऑफ द ऑफिस PAO को उसका सर्विस बुक को हैंड ओवर करेगा और वहां पर वो बेसिकली जो उसका लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन से कि पेंशन कंट्रीब्यूशन से उसको मेंशन करेगा और किस डेट में वो एक्चुअली रिटर्न आ गया उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को वो पूरा मेंशन होगा और अटेस्टेड करेगा। और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर के अलावा और उसको कोई अटेस्ट नहीं करेगा। ये SR 203 में है रिलेटेड टू द फॉरेन सर्विस। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्विस बुक शुड कंटेन एवरी स्टेप इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ। ये तो होता है, मैं बताया था एवरी स्टेप इन ए गवर्नमेंट।
आपका बेसिक पे चेंज हुआ, पे फिक्सेशन हुआ, आपको न्यू इंक्रीमेंट मिला, आप एलटीसी लिया, आपका लीव रिकॉर्ड्स, आपको सस्पेंड कर दिया गया, रीजन्स, ड्यूरेशन, आपका सर्विस इंटरप्ट हुआ, रीजन, ड्यूरेशन, ये सब मेंशन होता है। एवरी पीरियड, एवरी स्टेप इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ, ये एसआर किसमें है 199 डिस्कस किया था। 2 में एवरी पीरियड ऑफ सस्पेंशन, इंटरप्शन एटसेट्रा विथ इट्स पीरियड, ये मेंशन हुआ है एसआर 200 में, मैं बताया था। रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट विथ रीजन्स, यदि लोअर पोस्ट को रिड्यूस होता है वो भी विथ रीजन्स, वो भी सर्विस बुक में मेंशन होगा। ये है जो 3 है वो एसआर 201 है। सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस, एनुअल वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस जो होता है एवरी ईयर सर्विस बुक, ये राइट है गवर्नमेंट सर्वेंट एवरी ईयर वो उसका सर्विस रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है। ये 200 एसआर 202 है। और एसआर 203 में क्या है, रिलेटेड टू फॉरेन सर्विस। ठीक है, ये दिया है करेक्ट, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट वन, ये ऑल आर करेक्ट वन, ये सभी मेंटेन होता है सर्विस बुक में। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चंस था और ये जो सप्लीमेंट्री रूल्स था 196 टू 203 मैं अच्छे से बताया। और एक बार बता देता हूँ, एसआर 196 वो गेजेटेड ऑफिसर के ऊपर है, एसआर 197 वो नॉन गेजेटेड सर्वेंट के ऊपर है, 198 वो कस्टोडियन है, किसका कस्टडी में रहेगा सर्विस बुक। ठीक है, और 100 जो 99 था वो था एवरी स्टेप इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ, वो मेंटेन होगा। एवरी स्टेप इन द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफिशियल लाइफ मेंटेन होगा सर्विस बुक में। और यदि सस्पेंशन की सर्विस से इंटरप्ट होता है वो भी मेंशन होगा विथ रीजन्स एंड ड्यूरेशन, वो एसआर 200 बोलता है। और यदि लोअर पोस्ट को रिड्यूस किया गया ड्यू टू मेजर पेनल्टी, रीजन, ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन के लिए लोअर पोस्ट को इट मीन्स पोस्ट को रिड्यूस कर दिया गया, वो भी मेंशन होगा एसआर 201। और गवर्नमेंट सर्वेंट का राइट है वो एवरी ईयर उसका सर्विस बुक को चेक करेगा, वो दिया है सप्लीमेंट्री रूल 202 में। और यदि फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर होता है इस केस में उसको नोटिंग कौन करेगा, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, वो एसआर 203 में है। तो ये पूरा डिस्कस किया, तो आपको वन साइड में सप्लीमेंट्री रूल्स 196 टू 203 पता चल गया। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था सर्विस बुक रिकॉर्ड के ऊपर, उसको भी बढ़िया से मेंशन किया। तो आप सेकंड पार्ट को वेट कीजिए, MCQ 2 जनरल सर्विस रूल्स, और उसमें और इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा। आज इतना ही है।